जय गुरु सभी को जो भी उपस्थित हैं। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह आचमन, पंचवरी और सप्तार्ची के उच्चारण से हमारा ये सेशन आरंभ होगा। आज ये एवोल्यूशन आचमन आरंभ करेंगी वाराणसी से स्थिति दासगुप्ता। तो स्थिति दासगुप्ता, अगर आप हैं तो ऑनलाइन है। जय गुरु। तुम शुरू करो। वंदे पुरुषोत्तमम। आचमन। हे परम कारुणिक, हे সর্ব, হে সর্বান্নসুত, ব্যক্ত প্রাক প্রথম বাক, সর্ব স্বর্গ সর্বহৃদয়, প্রাণন পরিমল, অদ্বিতীয় ঈশ্বর, জীব জগৎরূপে প্রতিভাত, রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান। এই আমিও তোমার, তুমিরই উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যা কিছু মলিনতা উচ্চারিত অমৃত আশিসে, জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। পঞ্চবরী। एकमेवाद्वितीयं शरणं पूर्वेषाम अपुरीतारः प्रबुद्धाः ऋषयः शरणं तद्वर्तमानुवर्तिनः पीतरः शरणं सत्तानुगुणावर्णाश्रमाः शरणं पूर्वापुरुको वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणम् एतदेवार्यायणम् एष एव सद्धर्मः एतदेव शाश्वतं शरण्यम्। सप्तार्ची। नोपास्यमन्यत् ब्रह्मानुब्रह्ममेकमेव द्वितीयं तथागतः तद्वर्तिका भेदः तथागतः ग्रयो हि वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वेषामापुरेता विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासनं ह्यनुसर्तवन्येतरत् तिष्ठाप्तवेद पितृपरलोकदेवः श्रद्धयाः नपोयः सदाचार वर्णाश्रमानुग जीवनवर्धन नित्यं पालनीयाः विहित सवर्णानुलोमाचार परमुत्कर्ष हेतेवः स्वभाव परिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचारम्। जय गुरु। तो अब श्री ठाकुर जी की वाणी से पाठ होगा। तो सबसे पहले बांग्ला में पाठ करेंगे हमारे बीच बशीरहाट, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बांग्ला से सुदीप बोस। सुदीप बोस, आप हो? जय गुरु। जय गुरु सबाइके। जय। परम प्रेम শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আলাসাদি গ্রন্থ যখনই বাস্তবিক সেবা লইয়া আলিঙ্গন করিবে, জীবন অর্থ কাম মোক্ষ তোমাকে সেবা করবেই করিবে। আর যখনই তুমি ঈদের দিকে আনত হইবে, নিশ্চয় জানিও ইহারা তোমায় এমনতর আছাড় দিয়ে পলায়ন করিবে, পুনরায় উত্থান শক্তিকে আমন্ত্রণ করা তোমার পক্ষে নিতান্তই পরিশ্রম সাধ্য হইবে। তুমি ইহাদের লইয়া তোমার পারিপার্শ্বিকের সেবায় নিয়োজিত করিও, শ্রেয় লাভ করিবে। বাণী সংখ্যা 100। जय गुरु। इसके बाद हिंदी में इसी वाणी का हिंदी अनुवाद पाठ करेंगे रायपुर छत्तीसगढ़ से संतोष। संतोष, आप हो? जय गुरु। जय गुरु। तुम धर्म को जब ही वास्तविक रूप से सेवा सहित आलिंगन करोगे, जीवन अर्थ काम मोक्ष तुम्हारी सेवा करेंगे ही करेंगे। और तभी जब भी इसकी सेवा में अनुरक्त होगे, तब तुम इनकी ओर आनत होते हो। निश्चय जानो ये सभी तुम्हें इस प्रकार से पटक कर प्लान करेंगे ही। पुनः उत्थान शक्ति का आमंत्रण करना तुम्हारे लिए नितांत ही परिश्रम साध्य होगा। तुम इन सभी को लेकर अपने पारिपार्श्विक की सेवा में नियोजित करो, श्रेय लाभ करोगे। यह चलार साथी से वाणी संख्या 100 से लिया गया। वंदे पुरुषोत्तम। अब इसी वाणी का अंग्रेजी अनुवाद,
इंग्लिश ट्रांसलेशन ये पाठ करेंगी अगरतला त्रिपुरा से शाश्वती दासगुप्ता। शाश्वती आप हो ऑनलाइन? हाँ, जय गुरु। जय गुरु। Whenever you embrace dharma in a practical life, teachers, and solution will definitely find. And whenever you become attached to serving these things and bow down to them, know for certain that they will flee away, dashing you down in such a manner that it will be extremely difficult for you to invite the strength to rise again. Take these things and engage them in the service of the environment. You will achieve good. Boon Companion, verse number 100. Jai Guru. जय गुरु। तो अब इस वाणी के साथ ही चर्चा हम लोग शुरू करेंगे आज की सभा का। तो সুদীপ বাসু তুমি আছো? তুমি কিছু বলবে? হ্যাঁ বলবো, তবে বাংলায় বলবো আসলে। ঠিক আছে, তুমি সব ভাষায় মিলিয়ে ঝুলিয়ে বলো। ঠাকুর এখানে বলছেন যে যদি আমি ধর্মকেই বাস্তবভাবে আলিঙ্গন করি নিজের জীবনে, তবেই আমার কাম মোক্ষ অর্থ মান যশ আমার পিছন পিছন ছুটবেই। যদি আমি শুধুমাত্র ধর্মকে, শুধুমাত্র ঠাকুরকে যদি আমি নিজের কাছে আপন করে নিতে পারি, তবেই আমার আর কাম মোক্ষ অর্থের জন্য আর ভাবতে হবে না, চিন্তা করতে হবে না। আর যদি আমি সেই কাম অর্থ বা অর্থের জন্য আমি ছুটি সেইগুলোর পিছনে, তবে আমি যে কখন জীবনে তলিয়ে যাব আমি নিজেই বুঝতে পারবো না। তাই জন্য যদি আমরা সবসময় এক কেন্দ্রিক হয়ে চলি, তবে কিন্তু আমাদের জীবনে ঠাকুরকে ধরে সার্থকতা আসে। ঠাকুর বলছেন যে একেরই যাতে চরম হয় তাই করো, সকলগুলোই পাবে। একটা চাইতে গিয়ে 10টা চেয়ে বসো না, একেরই যাতে চরম হয় তাই করো, সকলগুলোই পাবে। যদি আমি শুধু ইষ্টকে মাথায় নিয়ে তার চিন্তা করতে থাকি, তাহলে আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের জন্য আমার আর ছুটতে হয় না, আমার পিছনে ওরা নিজেই দৌড়ায়। যদি ওইগুলোর পিছনে আমরা ছুটতে থাকি, তাহলে আমার ইষ্ট বন্দনাও হয় না, আর আমি সব দিক থেকেই তলিয়ে যাই। এইটুকু মনে হলো, বাংলায় বললাম আসলে। খুব ভালো সুদীপ। जय गुरु। संतोष आप कुछ बोलोगे इस पे? अगर हाँ, इस वाणी में एक्चुअली ठाकुर जी धर्म के पकड़ने से हमारा क्या क्या उत्थान होता है और उसके सही रूप से अगर हम उसको सही धर्म को सही वास्तविक रूप से सेवा भाव लेकर के आलिंगन करके हम चलते हैं, तो ठाकुर जी बोलते हैं जीवन अर्थ जो काम पैसा है, काम और मोक्ष तुम्हारी सेवा करेंगे ही करेंगे, ये निश्चित है, करेंगे ही करेंगे, ये सर्टेनिटी है। ठाकुर जी इसमें बोलते हैं। और जब भी इनकी सेवा में अनुरक्त होकर के तुम इनकी ओर आनत होते हो, अगर हमारा जो झुकाव इनकी सेवा के अनुरक्त ही अगर हमारा झुकाव होता है, तो ठाकुर जी कहते हैं डेफिनेटली ये तुम्हें ये जानो, ये इस प्रकार से अगर तुमको रखेंगे, मतलब पलायन करेंगे, छोड़ करके चले जाएंगे, और उसको उठने मतलब इस तरह का है कि काम क्रोध लोभ अगर हम ठाकुर के रास्ते पे या जो धर्म का वास्तविक रूप लेकर के हम चलते हैं, तो ये हमारे जो है सेवा भाव प्रदान करेंगे, हमें को और नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके लेकर के चलते आनत होते हैं, तो वो कहते हैं कि ठाकुर जी इस तरह से जो है ये कहते हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ मोक्ष ये सब है, तुमको इस तरह से पटकेंगे कि तुम्हें उठना जो है मुश्किल हो जाएगा, मतलब तुम्हारा वहां पतन होगा ही होगा। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि इसको अगर सामरिक रूप से अपने परिवेश और अपने भाई बंधु अपने गुरु भाइयों के बीच में सामरिक रूप से बांट करके उनके सेवा भाव को आनत करके चलते हो, तो इसका श्रेय तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे
आजकल हमारे ऋषि मुनि हुआ करते, जैसे कबीरदास जी और जो है श्री राम जो है दास, बहुत मुनि हुआ करते थे, तो वो इस काम क्रोध लोभ में नहीं पड़ते थे। वो सिर्फ जो गुरु सेवा करता था। जो वास्तविक रूप होता था धर्म का एक्चुअली धारण धृतधात से आया है, जिसको धारण करके हम बचने और बढ़ने के रास्ते पे चल सकते हैं, जिसके ऊपर हम वो हमारा जीवन और अर्थ काम मोक्ष को हमको अच्छी रूप से सेवा भाव करेंगे। लेकिन अगर हम उसमें लालच में पड़ गए कि हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाए और कमा करके हम रखें, तो वो पैसा और ये जो श्रेय या प्रसिद्धि हमारी ज्यादा देर तक सेवा नहीं करेंगे। अगर हम इसको बांट करके अपने परिवार के सदस्य और गुरु भाई और पारस्परिक को लेकर के अगर हम सामरिक रूप से चलते हैं, तो हमारा वहां पे उत्थान होगा ही और उसका श्रेय मिलेगा ही मिलेगा। यही ठाकुर जी का विशेष रूप से वाणी का पाठ। ठीक है, संतोष जय गुरु। और शाश्वती, आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? मैं समझती हूँ कि धर्म, ठाकुर जी बोले हैं कि बीइंग एंड बिकमिंग जो है वही धर्म है। तो अगर हम इस रास्ते में चलते हैं, धर्म के रास्ते में चलते हैं, तो जीवन अपने आप उसमें आ जाता है, क्योंकि जीवन का मूल स्वरूप ही धर्म है। तो जीवन हमारा अनुसरण करेगी, मतलब अगर हम धर्म का अनुसरण करेंगे तो जीवन ऑटोमेटिकली अनुसरण करेगा। साथ में अर्थ, ठाकुर जी जैसे बोले हैं कि अगर तुम इष्ट केंद्रित होके चलोगे और सभी को सेवा देकर चलोगे, जैसे कि कोई ऋतिक के बारे में ही स्पेशली बोले थे कि आप ईश्वर की ही प्रतिष्ठा करो, ठाकुर जी की ही प्रतिष्ठा करो, तो अर्थ के पीछे तुमको भागना नहीं पड़ेगा। ये हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो अर्थ भी मतलब जीवन के साथ साथ अर्थ भी उसके साथ आ जाता है अगर हम धर्म के पथ पर चलते हैं, ईश्वर केंद्रित होकर, इष्ट केंद्रित होकर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। तो क्योंकि अगर हम किसी की सेवा करते हैं या किसी तरह से सहायता करते हैं, ये दिमाग में रख के कि उसको इष्ट केंद्रित करना है, उसको ठाकुर जी के मार्ग पर लेकर जाना है, तो और उसको ये जताते भी नहीं है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं या उसकी वो कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो प्यार, वो जो सेवा भाव है, उसी से वो ऐसा उसमें भाव जागृत हो जाता है कि जब भी हमारा कुछ भी प्रॉब्लम हो या कहीं से भी कभी अर्थ की जरूरत पड़ जाए, हम बिना मांगे ही वो सब हमको हेल्प कर देते हैं। तो अर्थ पीछे ही आ जाता है, हमारे पीछे ही आ जाता है, हमको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। काम मोक्ष, अगर इन सब के प्रति हम आनत ना रहें और धर्म के रास्ते पे चलते जाए, तो जैसे कि ये हम लोग सोचते हैं कि ये सब एक प्रवृत्तियां है, लेकिन इससे ऊपर हम लोग चलते रहते हैं, तो ये अपने आप हमें फॉलो करते जाते हैं, बट हम इससे ऊपर ही रहते हैं। तो सेवा करेंगे और जब भी इनकी सेवा में अनुरक्त होकर तुम इनकी ओर आनत होते हो, निश्चित जानो ये सभी तुम्हें इस प्रकार से पटक कर पलायन करेंगे। जैसे कि लेकिन अगर हमारा मेन उद्देश्य इष्ट केंद्रित ना हो या ईश्वर सेवा ना हो, धर्म को अपने जीवन में मूर्त करना हमारा लक्ष्य हो, और रादर हम अपने जीवन में अर्थ काम मोक्ष इसको पाने के लिए व्यस्त हो जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, लोग ये सब चीजों के अंदर जकड़ कर हम रह जाते हैं, इससे ऊपर हम उठ नहीं पाते हैं। जब हम लोग इसके अंदर जकड़ कर रह जाएंगे, तो ये हमको इस जगह में जाके पटक देगा, मतलब हमारा क्या हाल होगा, मतलब उधर से इतना नीचे हम गिर जाएंगे, हमारी सोच, हमारी करनी, हमारा वचन इतना नीचे चला जाएगा कि उधर से पुनः उत्थान के ऊपर आते आते हमारी एनर्जी जो है वो क्षय प्राप्त होती रहेगी। तो इसीलिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इष्ट केंद्रित होकर के मार्ग पर चलना, जिसके पीछे जीवन, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब से ऊर्ध्व उठकर हम लोग चल पाएंगे, और ये सब अपने आप हमारा मतलब हमारे पीछे अपने आप ही चलता रहेगा, बट हम इससे ऊपर चलेंगे। जय गुरु। जय गुरु। तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, समरेश तिवारी, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप अनम्यूट करके आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं इस पे? हाँ, जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। आप कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर से बोल रहा हूँ सर। ओके। हाँ दादा, इस बीच में जो वाणी अभी पढ़ा गया,
उसमें मुझे 3 चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक की। वो धर्म था, दूसरा सेवा और परिपार्श्विक। तो मतलब कि अगर परिपार्श्विक को, अपने एनवायरनमेंट को अगर हम अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, फायदा के लिए अगर हम ठगना या इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो चीज ज्यादा दिन छुप के नहीं रहेगी, और बदले में कभी ना कभी हमारी असलियत सामने आ जाएगी, और फिर हम उस अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं ले सकते। तो बेसिक चीज है कि हमको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से नर्चर करना है कि वो हमको फुलफिल करना स्टार्ट करे। हमको जो लगता है संक्षेप में यही मैं समझ में आया है तो मुझे। हम्म, ठीक है तो भाई, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ स्वरूप दा, आप बोलिए। हाँ, यहाँ आज जो बानी पाठ किया है हम्म, हम लोगों ने, तो ये बानी को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा उससे। हमारे जो ये सेशन जहां से स्टार्ट हुआ था, तो वहां हम आलोचना किए थे सत्ता सच्चिदानंदमय असत निरोधी सतई। राइट। उसमें है कि अस्तित्व का परिपोषक है धर्म, और नेक्स्ट वाला लाइन आएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि धर्म मूर्त होता है आदर्श पे। राइट। तो जब तक ये चीज नहीं आएगा तो धर्म सही मायने में नहीं आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है। हमें सबको मालूम है कि ये रथ चलाने वाले महाभारत में थे श्री कृष्ण, लेकिन हम बहुतों को नहीं मालूम कि कितने घोड़े थे उसमें 6 घोड़ा था। ये 6 घोड़ा जो है वो 6 प्रवृत्तियां है। तो ये जो चैरियट था, ये चैरियट का जो हाथ का जो नियंत्रण का जो क्या बोलते हैं धागा, वो नियंत्रण वाला जो रेन्स था, इंग्लिश में हम रेन्स ऑफ द लगाम, हाँ लगाम। तो ये लगाम अर्जुन ने दिया था उनके आदर्श के हाथ पर, उनके गुरु के हाथ पर। जब ये लगाम वहां पे हम छोड़ेंगे तो धर्म सही मायने में पालन कर सकते हैं हम। क्योंकि अर्जुन को तो लग रहा था कि सबको मारना होगा अधर्म, उसको मालूम नहीं था कि धर्म इसके बाद वाला हिस्ट्री कैसे लिखा रहेगा, ये युद्ध पर निर्भर करता है। अगर वहां कौरव जीत जाते, मान लीजिए कि कौरव जीत गया, तो ये समग्र भारतवर्ष और पृथ्वी का इतिहास कहीं अलग ढंग से लिखा होता। इसीलिए धर्म मूर्त होता है आदर्श में, और जब तक हम आदर्श पे सरेंडर नहीं करते, उनको ग्रहण नहीं करते अपने जीवन में, तब तक हम धार्मिक नहीं बन रहे। तो वो सही मायने में है धर्म को लेके चलो। एक व्यक्ति था जो पावना में जब ठाकुर थे, तो वहां ठाकुर जी के पास आके बोले कि मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या आए, बहुत लोग मेरे ऊपर आक्रोश रखे और मुझे विश्वासघातकता बहुत मिला है। ठाकुर आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं अर्थ मान यश मुझे जीवन में प्राप्त हो। ठाकुर ने हंसकर बोला कि अरे पागल, इस बारे में मत सोच, तू धर्म के पालन कर, तू इष्ट के पकड़ कर चलो, तुम इष्ट को पकड़ कर चलो। तो वो दोबारा बोला ठाकुर को कि नहीं ठाकुर, मुझे अर्थ मान यश ही चाहिए। तो ठाकुर म्लान वदन में ठाकुर ने बोला कि ठीक है, जो ठाकुर की इच्छा। बस इसके बाद लेकिन उसके जीवन में बहुत अर्थ आया, मान आया, यश आया, माने भरपूर आया। वो बहुत जमींदार से भी बड़ा बन गया और उसमें कोई कमी नहीं था उसका जीवन में, और वो सबको खिलाता पिलाता भी था और दान धर्म भी करता था। तो उसको जीवन में लगा कि मेरा तो सभी हो गया। इसके बाद पार्टीशन हो गया और ठाकुर चले आए इंडिया में। बहुत साल के बाद एक व्यक्ति आया ठाकुर के पास, जो लंबा लंबा दाढ़ी में आके ठाकुर जी को प्रणाम कर रहा है, और ठाकुर जी को प्रणाम करके वो वापस जाने वाले थे। तो ठाकुर ने बताया कि अमुक ना रे। तो उसने बोला कि ठाकुर आप मुझे पहचान लिया? बोला हाँ, तो के तोर यही दशा होलो की करे, तुम्हारा ये दुर्दशा कैसे हुआ? तो उसने बताया ठाकुर आपने मुझे सावधान किया था, आपने बोले थे मुझे कि इष्ट और धर्म के पथ पर चलो, मैंने ही जोर जार करके आपको बोले थे और आप मुझे सब दिए, पर एक ही रात में पार्टीशन में मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं निहत्था बन गया, मेरे पास अब कुछ नहीं है ठाकुर। फिर वो वापस चला, ये बोलने के लिए मैं आया था बोल के चला जा रहा था।
तो दयाल के बारे में देखिए, दयाल बोल रहा है अरे सुन, तेरे पास रहने का जगह कहाँ है, तू यहीं पे ठहर जा। और इसके बाद जितना वर्ष वो जीवित रहा, जहां भी जहा, तो वो एक ही बात बोलता था, सत्संग या ऐसे भी किसी से मुलाकात हुआ कि देखो मैंने जो गलती किया वो तुम मत करो। दैट इज दी राइट पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से। और इफेक्ट नहीं करने से क्या होता है। जय गुरु। बहुत बहुत अच्छा स्वरूपदा, सही बात है। ये वाणी एक्चुअली मूल चीज जो है वो पहला लाइन ही है, धर्म। तो और धर्म, ठाकुर जैसे स्वरूपदा ने अभी बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा, धर्म धृति, अपहोल्डिंग अर्ज, जो रहना, जो मैं हूं, ये जो मेरी विद्यमानता है, ये रहने का जो कारण है, दैट इज अर्ज। वो अर्ज ही है धर्म। और ये जो मैं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है, इसके ही कारण है आदर्श, आइडियल। वो आदर्श में अटैचमेंट रहेगा तो मेरा ये अर्ज कायम रहेगा। और ये मेरा जो एग्जिस्टेंशियल अर्ज है, ये एग्जिस्टेंशियल अर्ज, अस्तित्व को कायम रखने की जो ये मेरी आकांक्षा या इच्छा, हम जो भी कहें, वो है, तभी फिर और कुछ है। और जितने सारे अभी जैसे ठाकुर ने कहा, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है कि हम अर्थ काम मोक्ष धर्म नहीं कहते, हम मोक्ष अर्थ काम धर्म नहीं कहते। ये जो ये लाइन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन तो है ही वो इन टोटलिटी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना हम करते हैं, इस तरह से हम कहते हैं। तो मतलब धर्म मतलब जो मैं हूं, ये मेरा रहना ही अगर नहीं रहेगा तो फिर अर्थ का क्या मतलब, काम का क्या मतलब, मोक्ष का क्या मतलब। मतलब संपूर्ण रूप से मेरा एग्जिस्टेंस, मैं जो हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा रहना। और ये धृति जो है, ये रहना ही के कारण है वो इष्ट, वो आदर्श, वो आइडियल। क्योंकि वो आइडियल और इष्ट अगर नहीं है तो मेरा सही मायने में रहना भी नहीं है। जो हम रहते हैं वो एक्चुअली रहना है नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो मुझे रसातल हेल की ओर ही ले जाएगा, डिस्ट्रक्शन की ओर ही ले जाएगा। तो मतलब ये जो धर्म है, और एक चीज मुझे लगा जो मैं थोड़ा कहूं, अर्थ का मतलब हम लोग समझ लेते हैं रुपया पैसा या ये अर्थ। यहाँ पे अर्थ मतलब मुझे लगता है कि अर्थ मतलब जो जो इक्विपमेंट, जो भी जो कंपोनेंट्स जो मेरा लिविंग को सपोर्ट करता है, दैट मे बी मनी, दैट मे बी फूड, और दैट मे बी क्लोथ्स, दैट मे बी, और जो जितने सारे मेरे जरूरत हैं, मतलब जीवन धारण करने के लिए हमें। क्योंकि ये अगर मुद्रा की बात करें तो ये मुद्रा कब इसका आविष्कार हुआ है, तो अर्थ का मतलब है कि जो जो हमारे जीवन को कायम रखने में जो सहायता करता है, हेल्प करता है मैटेरियलिस्टिक दृष्टि से, दैट कैन बी कॉल्ड अर्थ। और अगर हम देखें कि हम जब जन्म लेते हैं, मेरा जीवन है, फिर हमारा पोषण जब होता है अर्थ के द्वारा, हम पोषित होते हैं, और उसके बाद से फिर इच्छाएं जगती है, कामना। ये और ये कामना इच्छा ना हो तो हम कुछ भी ना करें, हम इवन हम खा भी ना सकें। अगर ये कामना नहीं है तो हम खा भी ना सकें। लेकिन यही कामना अल्टीमेटली इतनी, वही जो अभी स्वरूपदा कह रहे थे कि 6 घोड़े, यानी हमारी जो ये प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, ये एक कामना से करोड़ों लाखों मिलियंस बिलियंस ऑफ कामना में विभाजित होता है। ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं। तो इसी खिंचाव में वो रथ का घोड़ा यदि एक लगाम में बंधा हुआ नहीं है तो अल्टीमेटली अगर वो 6 घोड़े अगर 6 दिशा में दौड़े तो जिस रथ का वो घोड़ा है उस रथ की क्या हालत होती है। लाइक दैट हम ह्यूमन बींग्स का यही हालत होता है कि इतनी सारी कामनाएं हमारे जीवन, और कामना के बिना चलेगा भी नहीं, क्योंकि हम हैं तो कामना रहना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। लेकिन देखा जाता है कि ये कामना इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, इतने डिवाइडेड हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और हर एक डायरेक्शन में ये दौड़ रहे हैं कि उसमें हम क्षत विक्षत हो जाते हैं। तो इन्हीं कामनाओं को एक कामना
बनाना। तो वही इष्ट, अगर वो धर्म का स्थान अगर है तो सभी कामनाएं आके उनमें सब्लिमेट करता है। और ये जब हर कामना जब एक बन जाता है, जो जस्ट टू फुलफिल हिम, हम कुछ भी करते हैं, मेरे जितनी वृत्ति प्रवृत्तियां, काम क्रोध सब कुछ है इष्ट को परिपूरित करने के लिए। जब वो कामना जब एक में, वन में जब मिलता है, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। कि फिर उसके अलावा और कोई कामना नहीं रहता, जस्ट टू फुलफिल माई लॉर्ड और जस्ट टू सेटिस्फाई माई लॉर्ड। उनकी तृप्ति में ही मेरी तृप्ति, उनके अच्छे रहने में भी मेरा अच्छा। ये जब एक के कारण, जस्ट उनके कारण ही पूरे पृथ्वी को मैं उन पे समर्पित करता हूं, उनकी सेवा में, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। तो मुझे लगता है कि धर्म मूल है, और जहां पे अगर धर्म ही नहीं रहा तो फिर इतने सारे ये इंतजाम जो हैं, अर्थ काम मोक्ष, ये सब कुछ तो उसी धर्म के लिए है। तो जब धर्म ही नहीं रहेगा तो ये सब कुछ जैसे लगता है जो कोई कारण विहीन एक वस्तु की तरह हो जाएगा, और वो नष्ट भ्रष्ट ही होगा। और इसलिए वो लास्ट लाइन भी है कि अगर के बिना ये सब को हम ग्रहण करते हैं तो किस वक्त, और क्या ब्यूटीफुल ठाकुर जी का ये व्यवहार है अलंकारिक, आप देखिए कि पटक कर तुम जिसको समझ रहे हो कि यही तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम जिसको समझ रहे हो कि यही तुम्हारा प्राण है, वही तुम्हें, जो तुम्हारा सबसे अपना है, वही तुम्हें पटक कर और पलायन कर जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। तो अल्टीमेटली ये मुझे लगता है। तो जयदीप और इस विषय पे और अगर कोई कुछ कहना चाहे तो, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, इस वाणी में जो बोल रहे हैं ठाकुर, वास्तविक रूप से सेवा सहित आलिंगन करोगे, उसका अर्थ क्या है? सेवा किसको करना है? तुम धर्म को जब भी वास्तविक रूप से सेवा सहित आलिंगन करोगे, धर्म को सर्विस सेवा किसको करना है? मनुष्य को करना है ना इष्ट के लिए करना है? ये तो स्वरूपदा ने स्पष्ट कर दिया ना कि जो धर्म जो मूर्त होता है, धर्म जहां मैनिफेस्टेड होता है, दैट इज आइडियल। तो नेचुरली अगर हम धर्म को आलिंगन करना चाहते हैं, धर्म की सेवा करना चाहते हैं, तो वास्तविक रूप से जिनमें धर्म मूर्त है, क्योंकि धर्म तो ऐसे दिखता नहीं ना, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम आदर्श लाइक दैट कि भगवान और ईश्वर, वो भी एक भाव है, जब तक हम किसी एक मैटेरियलाइज्ड फॉर्म में उसको नहीं देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो धर्म भी वही है। तो धर्म जब मैटेरियलाइज्ड होता है किसी आइडियल में, और उन आइडियल को आलिंगन करते हैं, उन आइडियल की हम सेवा करके चलते हैं, तो फिर वो धर्म हमारे जीवन में समझ में आता है। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। कौन? मैं कौस्तव नागचौधरी। हाँ, कौस्तव। आप जैसे अभी बोले हैं, जो सेवा के बारे में बोला गया है, वो जैसे आप बोले हैं कि इष्ट को सेवा करना है, इष्ट का सेवा करना है, हमारे आइडियल पर्सन का सेवा करना है, वो उसका मतलब ही है कि हम उनके, वो जो चाहते हैं उस चीज को पालन करें, उस चीज को पालन कर करके चलें। अब वो क्या चाहते हैं, सत्यानुसरण में बोला गया है कि बहुर जन्य एक के भालोबाशा হচ্ছে आसक्ति और एकेर जन्य बहु के भालोबाशा হচ্ছে भक्ति। मतलब बहुत कुछ हम लोग चाहते हैं, हम लोग के जीवन में ये जो बोले गए जे अर्थ काम मोक्ष, ये सब कुछ हम लोग चाहते हैं। इस चाहने के लिए, इसको पाने के लिए हम लोग हमारे आदर्श को सेवा करते हैं, आदर्श के शरण में आए हैं, आदर्श को मानते हैं, इसको बोलते हैं आसक्ति। और आदर्श चाहते हैं कि हम लोग सबको लेके चले, सबको प्रेम करें। ये जो ठाकुर जी बोले हैं कि सर्विस देना है लोगों को, द अर्थ इज आवर होम, वी हैव रेंटेड इट फ्रॉम आवर सुप्रीम बिलवेड गॉड, वी मस्ट पे द रेंट, not in the form of money but in the form of service to mankind. The earth is our home, we have rented it from our supreme beloved God. हम लोगों ने ये धरती को रेंट पे लिया है, यहाँ पे कोई परमानेंटली नहीं रहते हैं, हम लोग कुछ दिन रहते हैं उसके बाद चले जाते हैं। ये रेंट हम लोगों को पे करना ही है। कैसे पे करेंगे? Not in the form of money but in the form of service to mankind. तो हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो है सब जीव के अंदर हमारे आदर्श को देखना,
हमारे भगवान को देखना। जो बोले हैं स्वामी विवेकानंद जी कि बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार ছাড়ি কথা খুঁজিছ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। बोल रहे हैं कि चारों तरफ तुम्हारे जीव हैं, चारों तरफ तुम्हारे इंसान है, सब में भगवान है, सबके तरफ देखना पड़ेगा। हम लोग एक रास्ते से चल रहे हैं, एक रास्ते के अंदर एक लोग खाना नहीं मिल रहा है, वो एकदम आकुल तरीके से देख रहे हैं कि कोई अगर उनको कुछ खाना दे दे, उनके तरफ भी हमारा नजर जाना जरूरी है। जब जाके हमारे अंदर में फीलिंग्स आएगा, तब जाके असली प्यार हुआ। छोटे से छोटे जी ठाकुर जी बोले हैं, जब তোমার মনে যতদিন তোমার শরীর মনে একটি পিপিলিকারও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো, যদি তোমার ব্যথা লাগে पिपीलिकारो मतलब एक अगर छोटा सा एंट हो, उसके अगर उसको अगर दर्द हो तो उसके दर्द में भी हम लोगों को सहानुभूति आना चाहिए। उस टाइप का मेंटेलिटी जब आएगा तभी असली सेवा जो है हमारे आइडियल के प्रति वो मूर्त होगा। और जब वो मूर्त होगा ऑटोमेटिकली हमारा ईगो और अहंकार जो है वो कम होता जाएगा। और जब वो कम होगा तब अर्थ, काम, क्रोध ये सब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारे जिंदगी में कम होता जाएगा, क्योंकि इन सब के मूल ही है अहंकार। हम लोग अगर अर्थ कमाते हैं, हम लोग अगर काम की तरफ देखते हैं, सब कुछ हमारे अंदर सबसे पहले चीज जो लाते हैं वो है अहंकार। सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने बोले हैं যে অহংকার থেকে আসে স্বার্থ বুদ্ধি, স্বার্থ বুদ্ধি থেকে আসে কাম, কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি, আর ক্রোধ থেকে আসে হিংসা। তাহলে सब कुछ का मूल में है अहंकार। हम लोगों के अंदर जब ये अहंकार आ जाता है तभी हम लोग बाकी चीज एक एक करके उसके साथ रिलेटेड है सब चीज। तो हम लोग का तब धर्म जो ज्ञान है, आदर्श के प्रति जो प्यार है, वो भी दूसरे तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए उस सोच को हम लोग जो जितना हम लोग पॉलिश करेंगे कि नहीं कुछ भी करें। मैं आज यहाँ पे एक गाना गाया इस मंच पे या कभी बड़े मंच पे गाना गाया, गाते ही मेरे मन में एक अहंकार भाव आता है। अगर आया तो मेरे दिमाग में वो सोच आना पड़ेगा कि नहीं मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अहंकार आ रहा है। उसको कैसे पॉलिश करें? नहीं, मैं अपने आइडियल पर्सन के थ्रू कर रहा हूँ। मैं अपने आइडियल पर्सन के आइडियोलॉजी को प्रतिष्ठा करने के लिए ये गाना गा रहा हूँ। मैं अपने आइडियल पर्सन के आइडियोलॉजी को और फैलाने के लिए ये भाषण दे रहा हूँ। ये सोच जब आएगा तब जाके ऑटोमेटिकली वो जो अहंकार है वो सप्रेस होकर रहेगा। ठाकुर जी बोले देह जब रहता है, मतलब शरीर जब रहता है, तब अहंकार सब शरीर रहने से नहीं जाता है कभी। उसको जो जितना पैसिव करके चलता है वही उतना आगे बढ़ सकता है। ये सब चीजों का हमारे अंदर वो भाव रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत अर्थ, काम, मोक्ष सब मिलने का। लेकिन जो इतना पैसिव करके हम लोग आगे बढ़ेंगे वही हमारा कल्चर होगा। हम उसी को कल्चर करना है, उसी को दिमाग में रख के जितना चलेंगे उतना मुझे लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा 1 मिनट का एक स्टोरी बोल के मैं वो कर दूंगा। एक अहंकार का ही एक स्टोरी है, मुझे याद आया कि अकबर के राजसभा में रसूल नाम के एक वैष्णव थे। उनका नाम रसूल था लेकिन थे वो धर्म में वैष्णव। अकबर जितना भी दान धर्म करवाते थे वो रसूल से ही करवाते थे। तो वो जब दान करवा रहे थे तो अकबर देखते हैं कि रसूल जी जो खड़े हैं सामने, उनके पीछे सब सामग्री रहता था। जितना दान धर्म का सामग्री उनके पीछे रहता था और सामने लोग सब खड़े हैं लाइन पे, और रसूल जी अपने आंखें पूरे बंद करके रखे हैं। अब उनके हाथ में वो सामग्री दिया जा रहा है, वो सामग्री किसी और को दे रहे हैं। पूरा दान वही आंख बंद करके किए। तो खत्म होने के बाद जब अकबर जी ने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो एक ही चीज बोले कि पहली बात है कि मेरे पीछे इतना सामग्री है, सोना, ये खाना पीना सब कुछ है। जब मैं देखूंगा कि मैं अपने हाथों से ये दे रहा हूं तो मेरे अंदर में अहंकार आएगा। और किसको दे रहा हूं ये अगर देखूं तो उसके बारे में जो उसको मैंने दिया ये भाव मेरे अंदर आएगा कि इस आदमी को तो मैंने अपने हाथों से दिया था। देखिए दोनों के दोनों बहुत ही गहरा सोच की जरूरत है। मुझे लगता है कि दोनों जो सोच है कि मैं अपने इतना कुछ दे रहा हूँ, ये भी एक अहंकार की सोच है। और छोटा सा जो एक चीज दे रहा हूँ, जैसे कि अभी एक कोविड-19 में देखिएगा बहुत सारे लोग बहुत सारे को हेल्प कर रहे हैं। जरूर हेल्प करेंगे, जरूर सेवा करेंगे, लेकिन जो मन को हम लोग रखना है, ये करते करते भी हमारा मन को रखना है भगवान के पास
ठाकुर जी के पास, लेकिन हम लोग ठाकुर जी के सब भक्त, ठाकुर जी के सब लोग हैं, ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि है ईश्वर, उनको हम लोग सेवा करते जाना। वही we have to pay, we must pay the rent, not in the form of money but in the form of service। ऐसा करेंगे तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और वो रहेगा। इतना ही बोलना था। राइट कौस्तभ, बहुत ही अच्छा लगा। एक करेक्शन इसमें मैं कर दूं, थोड़ा सा जस्ट, ये एक्चुअली फैक्चुअल करेक्शन और कुछ नहीं। भावगत रूप से कौस्तभ ने कहा, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। जो वो रसूल एक्चुअली वो रहीम थे, जो पोएट जो रहीम है, संत रहीम। और तुलसीदास और रहीम ये दोनों करीब करीब एक ही समय के थे। तो रहीम चूंकि बहुत दान करते थे, और वो दान करते थे, जिसको करते थे उनको नहीं देखते थे, और उठाते थे और दे देते थे। जिनको कर रहे हैं दान वो नहीं देखते थे, जो किसको मैं दे रहा हूं। और तो तुलसीदास ने एक छोटा सा स्लिप कागज में लिख के, चूंकि एक समसामयिक कवि थे ना, तो उन लोगों में बहुत ही प्रीति संपर्क था, तो छोटा सा एक स्लिप लिख के भेजा रहीम को, कि उसमें लिखा था कि उसमें था, जो ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन। हुसैन और हुसैन, सैन का मतलब होता है सयाना, जो बुद्धिमान, जो विदग्ध ज्ञानी है। तो ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नयन। जैसे जैसे कर ऊंचा होता है देने को, वैसे वैसे आपकी नयन नीचे हो जाती है। तो तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर छंद करके लिखा कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नयन। तो रहीम भी तो वैसे ही रसिक, उन्होंने भी एक छोटा सा स्लिप तुलसीदास के लिए लिख के भेजा कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। जो देने वाले कोई और हैं, वो दिन रात भेज रहे हैं। तो देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भ्रम मुझ पे करो तासो नीचे नयन। कि लोग भ्रम करेंगे कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मैं अपने नयन को छुपा लेता हूं। तो अपने ईगो को ये करने के लिए, इसे बहुत ही अद्भुत ये कहानी है। तो इसमें एक चीज मैं छोटा सा ऐड करके फिर ये आगे बढ़ूंगा, कि धर्म का अगर एक उदाहरण पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में, अगर धर्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर है तो वो धरित्री, और इसका नाम भी पड़ा है धरती। धरती माने जो धरती, जो पकड़ के रखती। तो ये धरित्री धृति जो धारण करती है, आप कितना भी ऊपर जाओ, वो किसी को भी विच्युत नहीं करती, किसी को भी नहीं छोड़ती है, किसी का भी वो त्याग नहीं करती है। हम कितने भी ऊंचे चले जाए, वो चेष्टा करती है फिर से सबको ग्रहण कर लेने का। तो धर्म का अगर सबसे बड़ा उदाहरण अगर है तो ये धरित्री है। जो धरित्री का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि मतलब ऑल इंक्लूसिव, और सिर्फ इंक्लूसिव नहीं, सबको वो पकड़ के आकर्षण करके रखना चाहती है अपने उस, वो मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है उसमें वो बांध कर रखना चाहती है हर कुछ को। लेकिन यही चीज हम ह्यूमन बीइंग जब हैं, इसको अगर हमें इम्पार्ट करना है अपने लाइफ में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो जो धृति, ये जो धरती का जो वो धरती की जो ये धृति है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मुझे इम्पार्ट अपने लाइफ में करना है, तो मुझे भी एक लिविंग चाहिए, एक लिविंग एम्बॉडीमेंट चाहिए उस धृति का। जिनके लाइफ में, जिन्होंने अपने पारिपार्श्विक को लाइक वो मैग्नेटिक पावर, वो मैग्नेटिक एनर्जी, उन्होंने अपने संपूर्ण परिवेश को जिस तरह से अपने आलिंगन में, अपने आगोश में रखा है, ये एक लिविंग एग्जाम्पल जब हमारे सामने होता है और हम उनको जब ग्रहण करके चलते हैं, ओनली देन धर्म हम मूर्त हो सकता है, ओनली देन वी कैन सर्व द ह्यूमैनिटी। अदरवाइज अगर हम इस तरह से अगर चैरिटी करने के लिए निकले कि चलो हमको वो उसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, तो हम भी जाएंगे और जिनको ठीक कर रहे हैं उनको भी पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे, कैसे ठीक कर बैठेंगे। इसलिए सबसे ये जो छोटा सा कौस्तभ ने उदाहरण दिया, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया विवेकानंद की वो बात कि जीवे प्रेम करे जेई जन, সেই জন সেবিছে ईश्वर। जो जीवों से प्रेम करते हैं
वही ईश्वर की सेवा करते हैं। इसमें एक छोटा सा मैं एडिशन कर दूं, ठाकुर से जब ये ठाकुर के पास ये जब बात चर्चा चली थी, ठाकुर ने इस बात को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा हल्का सा। ठाकुर ने कहा था, जीवे करे इष्ट परिवेशन सेईजन सेविछे ईश्वर। माने जीवों में जो इष्ट का परिवेशन करते हैं, आदर्श को जो इम्पार्ट करते हैं, वो एक्चुअल मायने में ईश्वर की सेवा करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि धर्म दान श्रेष्ठ दान। और धर्म का मतलब दान क्या? वही धर्म जिनमें मूर्त होता है, उस आदर्श का दान। जब इस आदर्श को प्रति सत्ता में, घर घर में, अपने परिवेश में, जब हम उस सत्ता को, उस आदर्श को, जो सत्ता के धारक वाहक हैं, वो ईश्वर के प्रतीक हैं, उन आदर्श को जब हम प्रति प्राण में जब हम परिवेशन करते हैं, उनको इम्पार्ट करते हैं, दैट इज, मुझे लगता है कि रियल में हम धर्म की भी सेवा करते हैं, संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा करते हैं। और ये अगर हम करते हैं तो जीवन, अर्थ, काम, मोक्ष दासी की तरह, ठाकुर कहते हैं दासी की तरह हमारी सेवा करेगी ही। तो बस एक छोटी सी घटना मैं बोलना चाह रहा हूं इस विषय पे। ठाकुर जी की घटना है कि क्योंकि बहुत समय प्रैक्टिकल जीवन में चलते हुए कुछ मौका ऐसा आता है हमारा, जिस समय हो सकता है कि कुछ डायलेमा, कुछ ये हो, हिचकिचाहट। कुमिल्ला बोल के एक जगह था बांग्लादेश में, ठाकुर उस समय हिमायतपुर में ही थे। बहुत इनिशियल स्टेज की बात, समय की बात है, जिस समय बहुत ही अभाव में आश्रम के लोग रहा करते थे, कष्ट से चला करते थे ठाकुर को लेके। तो वो कुमिल्ला गांव की एक माँ थी जो कि आश्रम में रहती थी, तो उनको लोग कुमिल्ला माँ कहते थे। ये कुमिल्ला माँ एक दिन, बहुत बारिश हो रही है, सुबह का समय है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वो कलशी हाथ में लेकर किसी तरह से माथे पे आंचल डाल के और पद्मा नदी से पानी लाने के लिए जा रही हैं। तो पानी लाने के लिए जब जा रही हैं तो ठाकुर किसी एक घर में वहां पर बैठे थे, खिड़की से उन्होंने देखा, तो वो चिल्ला के ठाकुर बोले, ओ कुमिल्लर माँ, कोई जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? तो कुमिल्ला माँ उधर बढ़ रही थी नदी की तरफ, तो तुरंत घूम के आके दौड़ते हुए उस बरामदे पर, जहां पे ठाकुर अंदर घर में थे, तो उसी बरामदे के चौखट के पास आके कहते हैं, जो आगे जल आनते जाती, पानी लाने जा रही हूँ नदी से पीने का। तो ठाकुर ने कहा कि आमा एक तो तामाक खवाए जावा ना। ठाकुर जो हुक्का वो पीते थे तो उसको बनाना पड़ता था वो ये सब देकर। तो कुमिल्ला की माँ बोलती है, हाँ आगे अभी 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 करती हूँ बोल के उन्होंने कलसी को उसी बरामदे पर रख के, मुंह वहां ऐसे पानी से थोड़ा भीग गया था, वो सब पोंछ के घर के अंदर गई। फिर वो जो होता है हुक्के का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें अंगीठा ये सब डाल के उसको बनाते हैं, वो बनाने लगी। और बनाते बनाते ही उनके आंख से आंसू टपकने लगा और ठाकुर से कह रही हैं कि मैंने एक पिछले ही साल पैसा जमा किया था, सत्संग बैंक वहां पे था, स्टैब्लिश किया था ठाकुर ने, जिसमें लोग पैसा ये सब रखते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने पैसा इकट्ठा करके रखा था कि मेरे 2 बेटे हैं, उनका उपनयन करूंगी, तो उसी पैसे से मुझे श्राद्ध करना पड़ा। मतलब उनके ही घर में किन्हीं का डेथ हो गया, तो वो उपनयन का जो पैसा था वो उपनयन नहीं कर पाई, उससे वो श्राद्ध करना पड़ गया उनका। और आज फिर से मैंने सोचा था कि आज मेरा बेटे का उपनयन है तो कुछ लोगों को बुला के घर पे खिलाऊंगी, लेकिन ये प्रकृति का ऐसा तांडव मचा है तो मेरा कर्म ही फूटा हुआ है, मैं ऐसी अभागिन हूं कि मेरे जीवन में कोई सुख नहीं लिखा है, मैं ऐसी अभागिन हूं बोल के वो आंसू टपकने लगा, रो रही हैं और वो बना रही हैं। ठाकुर ऐसे करके बिछावन पर लेटे हुए थे तकिए पे हाथ देकर। उनकी ये बातें सुनकर ठाकुर अचानक उठ के बैठ जाते हैं और उनका चेहरा एकदम दिव्य, और जैसे लगा जो तनु भी, शरीर भी जो है वो विशाल हो गया। और वो इस तरह से थोड़ा दृढ़ कंठ में कुमिल्ला की माँ को कहते हैं कि माँ तू बोल, तुम बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम आज जो मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा, बोलो, पैसा कौड़ी धन दौलत घर बारी क्या चाहिए तुम्हें?
तुम आज जो मांगोगी आज तुम्हें वही मिलेगा, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ठाकुर एकदम दीप्त कंठ से उनको बोल रहे हैं, या अभय दे रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हें वही मिलेगा। ये सुनते ही कुमिल्ला की माँ वो जो सजा रही थी उसको, वो वैसे ही रख के दौड़ के आके ठाकुर का सीधा पांव के पास पांव पकड़ लिया। मुझे ठाकुर আমার কিচ্ছু চাই না, আমার কিচ্ছু চাই না, শুধু তুমি থাকলেই হবে। ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम रहने से ही होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन। ठाकुर का इतना सुनना था कि ठाकुर लगा जैसे ऐसे करके बैठ गए, एकदम ढीला हो गए, पूरा वो जो दिव्य वो चेहरा एकदम ढीला हो गए, और कहते हैं माँ तू की चे बोसली, माँ तुम ये क्या मांग बैठी, तुम मुझे मांग बैठी, अब तो सारा जीवन तुम्हारा कष्ट में जीवन रहेगा, सारा जीवन तुम अभाव में रहोगी, तुम्हारा घर में बिछावन पर नींद नहीं होगी, तो तुम क्या मांग बैठी तुम ये। तो वो आंसू रोते रोते ही कहती है कि ठाकुर मेरा कुछ भी हो, कष्ट हो दुख हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे तुम चाहिए, तुम रहने से ही होगा, आप रहने से ही होगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो कुमिल्ला की माँ, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इस पे, अभी उपलब्ध भी है, वो लिखती हैं कि सारा जीवन अभी भी, जिस समय पुस्तक लिख रहे हैं कि आज अभी भी घर में मुझे नींद नहीं आती, मैं बरामदे पर जब सोती हूँ बिछावन लगा के तो मुझे बहुत आराम से नींद आती। तो मेरा यही कहना है कि वही धर्म, कि वो धर्म की अगर रक्षा मीन्स मतलब ही है कि वो आदर्श की रक्षा, और उस आदर्श को अगर हम जीवन में कायम रखते हैं तो हर कुछ, पूरा ऐश्वर्य हमारे चरणों में रहेगा। तो मुझे लगता है ठाकुर जी की वाणी का और भी बहुत कुछ कह सकते हैं हम लोग, इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसको यहीं पे खत्म करें क्या जयदीप? आगे पुस्तक क्या है? पुस्तक बंगला में है, वो दुई मायर आलेखो या इस तरह से कुछ नाम है, वो पब्लिशिंग में मिल जाएगा। 2 माँ है, वो एक पाल माँ और ये कुमिल्ला माँ, इन दोनों का ही जीवनी उसमें है, ठाकुर की बहुत ही अनन्य। उनकी भी बहुत सारी कहानियां, वो फिर हम कभी चर्चा करेंगे हम लोग उस विषय पे। दादा वो বইটার নাম দুই মায়ের স্মৃতি আলেখ্য। হ্যাঁ, দুই মায়ের স্মৃতি আলেখ্য, राइट 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 राइट। बहुत सारी बातें इसमें ही। तो बॉम्बे से ये हैं, তুমি আছো নন্দিতা? আছি আছি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ নন্দিতা তুমি একটা গান করো। আগে ঠিক আছে, সবাইকে জয়গুরু জানাই। জয়গুরু। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूरख स्वामी दया कर, माझी मूरख स्वामी दया कर, तारन हारी तेरे बिन अब तू ही जीवन पथ दर्शाए, तू ही जीवन पथ दर्शाए, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु
पार लगाए। शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए। शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए। जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए। काल मरण से कौन बचाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया। पनघट का कौन राह दिखाए। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी। तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी। प्राण तेरे चरणों में अब तू ही जीवन पथ दर्शाए। तू ही जीवन पथ दर्शाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया। पनघट का कौन राह दिखाए। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। 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 জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু, জয় গুরু। খুব ভালো, ভালো।